દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારો, જીવન મારું બન્યું અકારો, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થવું છે, દાદા જેવું મારે થવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવનનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. રજની દાદા અનમ્યુટ. ઓકે, અમદાવાદ સ્ટાર્ટ શ્રીમંત. હા, નવ કલમ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. કમ ઓન ચિનાઈ ઓલ્ટરનેટ કરો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભે, ના દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી અમદાવાદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ
किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक गमे ते लिंगधारी होय तो तेना संबंधમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्माનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન અથવા મૃત્યુ પામેનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શૈલેષાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સવ સાહુનમ, નમો લોકે સવસા, એસો પંચન મુક્તારો, ऐसो પંચમુખારો, સવ પાવપણાસન, સુલોપણાસનો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાનં ચ સર્વેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ. પરમમંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખુશી अहमदाबाद. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने के संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. चिनाय. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन रूपक का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें. जय सच्चिदानंद. अनुज.
जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, ये कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। के श्रेया खुशी हेल्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। सेपरेशन प्रेयर दादा। ओ सॉरी, आप बोलो, चलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, now you can say. ઓકે. સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. Okay. Chennai. कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से अध्ययन करने से उत्कृष्ट गुण देगा, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा. हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो. सत्साधन का किसको आता है बेनिफिट? ओके, खुशी अहमदाबाद. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા જ સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके, वेरी गुड. तो रिपोर्ट किसने देखा, किसने भरा, किसने भेजा? ओके, किसने देखा? फर्स्ट क्वेश्चन, किसने देखा? 1 2. खुशी ने अहमदाबाद ने नहीं देखा, दर्शन ने नहीं लिखा, जिया दक्ष ने लिया. ओके, किसने भेजा? ओनली मोनिका, हिताक्षी बा और दक्ष, तीनों ने भेजा. खुशी अहमदाबाद, आपका क्या एक्सक्यूज है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी. मैं क्लासेस में गई थी. खाना खाया था? हाँ. पानी पिए थे? हाँ. मम्मी के साथ बात किया था? हाँ. दीदी के साथ मस्ती की थी? हाँ. तो टाइम नहीं मिला. रिपोर्ट कितना टाइम लगता है? ओनली 2 मिनट भी नहीं लगता है. So what is your excuse? खुशी नहीं लिखने का था. ओके. और दूसरी खुशी को, what is your excuse? I cannot hear you. जोर से बोलो. आलस आ गई थी. That's not a good excuse. दरअसल अभी कितना 2 साल हो गया आरएस की अदर अभी आरएस आती है तो अभी क्या करेगा? ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया ये सत्संग का. दरअसल आवाज क्यों आता है दरअसल? ओके दक्ष. दादा मैंने रिपोर्ट भेजी थी. यस, गुड बॉय. और पठान, पटना वाला है, आपका क्या एक्सक्यूज है? जिया तीर्थ. हाँ, वो आज घर पर नहीं थे तो नहीं भेजी, अभी सत्संग के बाद भेजी. घर पे सारा दिन नहीं थे? हाँ, नहीं थे. कितना बजे बाहर गई थी? सुबह
दोपहर को 2 बजे। तो सुबह ने क्यों देखा? और सर वो सुबह मतलब ट्यूशन गई थी और ट्यूशन से आके खाना खाया और फिर बाहर चली गई। देखो, ये इफ यू आर सीरियस, खाना नहीं खाना मांगता है। रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट देन खाना। कौन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, खाना के इम्पोर्ट रिपोर्ट? जिया, यू आर इन 11th grade. Priorities, क्या? priorities. You are हाँ, in 11th grade. You're no more a small child. अनुज जैसा नहीं है आप। और तीर्थ, मेरा भी 2 बजे से आज फिर ट्यूशन था 6 बजे को। फिर आके मैं अभी दीदी के no, पास like चला गया। good excuse दो, okay? ऐसा हाँ, था, मैंने खाया था, मैंने ये किया, वो तो सब सही। दिस इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज। आपको करने का नहीं है ऐसा बोलो। नहीं करने का है तो अभी शैलेश दादा छुट्टी दे देगा। नहीं करने का है। हाँ, और दरअसल मंथन, आपका क्या एक्सक्यूज है? हाँ, आज वो मैंने ग्रुप नहीं देखा था। हाँ, आज जो ग्रुप में जो आपने भेजा वो मैंने नहीं देखा था, भूल गया था। रिपोर्ट कहीं नहीं भेजा, इसकी बात है। ओके, ओके, वेरी बैड, नो एक्सक्यूजेस, दिस अ वेरी बैड एक्सक्यूजेस, ओके? ओके, सुपर ब्रेन योगा किसने किया था? किसने नहीं किया था? खुशी अहमदाबाद तो चोर हो गई है अभी। और सूर्य नमस्कार किसने नहीं किया था? क्या करेगा डॉक्टर साहब, ये इन लोग को क्या करेगा? उसको सब हॉस्पिटल जाने वाले। आफ्टर 20 years, 25, सब हॉस्पिटल का मेंबर्स हो जाएगा। ओके, एनीवे, क्वालिटीज आपने लिखा है मोनिका, दक्ष आपने पढ़ा नहीं क्योंकि लास्ट आया। एक तक से क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज योर गुड क्वालिटी? हाँ, बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी? एक एक दादा भगवान का 2-4 क्वालिटी क्या है? दादा भगवान सबके साथ एडजस्ट हो जाते थे। एडजस्ट। दूसरा? नो, आई जस्ट वांट adjectives or nouns, okay? ये लिखो, adjustment. Everybody start writing. दूसरा M से स्टार्ट होता है। मोरालिटी, मोरालिटी। इसके साथ क्या जाता है मोरालिटी के साथ? लघुत्तम, सिंसियरिटी। ओके, और दूसरा बोलो क्या क्या होता है? लघुत्तम भाव, उत्तम भाव या ह्यूमिलिटी। बोलो, बोलो। सिंसियरिटी, प्योर, क्या बोला दक्ष? सिंसियरिटी, तो बोल दिया ना। प्योर, नहीं, कुछ आता नहीं है। रजनी दादा, हाँ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, प्योर, ऑनेस्टी, सेल्फ रिलायंस, वेरी important, सेल्फ रिलायंस। ओके, टीम वर्क, हार्ड वर्क। दादा, इन लोग का भी होमवर्क है कि गुड क्वालिटीज एवरीडे पापा को पास पूछने का, मम्मी के पास पूछने का, और सेल्फ बोलने का। तो ये इन लोगों ने क्या लिखा कि ओ आई हेल्प, आई, क्या बोल लिखा था मोनिका? बोलो मोनिका, मोनिका, फ्रोजन। ओके, साक्षी, आपने क्या लिखा था? हाँ, आपको रिपोर्ट पढ़ो ना।
हाँ, मैंने लिखा था गुड क्वालिटीज में कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं अब काम कर लेती हूँ, और मेरी जो गुड क्वालिटी नहीं है वो हाँ, तो मैं उसका सुबह कर वो सेंटेंस का एडजेक्टिव पहले लिखना मांगता है ना। मोनिका, व्हाट डिड यू राइट? मैं जब मम्मी से पूछा था गुड क्वालिटीज, तो उन्होंने कहा मैं उनके कामों में मदद करती हूँ, और पापा से पूछा तो दुकान संभालने में मदद उसमें करती एडजेक्टिव तो कुछ भी मैंने देखा हमने। So we are हाँ। looking for अपना quality adjective. Okay, तो ये everybody must write a report. Okay, कल तो सत्संग नहीं होगा 2 दिन, तो please feel a report लिखने का। Then Sirza, why don't you talk about आप बातें करिए qualities में, slowly बोलना कि they can write down कि कौन सा qualities आ सकता है, और हम grade अपने grade कर सकता है। Okay, Sirza? Qualities about Dada Bhagwan or qualities of parents and themselves No, अपना he is a human being. as a human. Yeah, Yes. because As a human. especially related to them right now. So आपने हिंदी में बात करूं कि हिंदी में हाँ, करूं ना अभी? हिंदी में slowly करो so they can write down, because I want them to Sure. capture अपना Yeah, report yeah. में नीचे सब ये qualities लिखना, but though you can pick every day ये quality list कौन सा आपने use किया, okay? हाँ, okay, शेरज़ादा। हाँ, तो मेन बात तो आपने करी मोरालिटी की और सिंसियरिटी की। अभी सिंसियरिटी का जो गुण होता है वो अपने खुद के साथ भी सिंसियर रहता है, की किया है। और दादा भगवान ने बताया कि हम दूसरे को इनसिंसियर नहीं हो जाते, खुद को हो जाते हैं। दूसरा है अपना जो क्वालिटीज हम माने, तो भाई हम कितने हेल्पिंग हैं, हेल्पिंग नेचर जिसे बोलते हैं, ओब्लाइजिंग नेचर। तो ओब्लाइजिंग नेचर एक क्वालिटी है, दादा भगवान में बहुत बचपन से ये क्वालिटी थी। फिर आगे चले तो हमारे ध्येय के लिए जो हमारी निष्ठा होती है, कि हमारी निष्ठा कैसी है, कोई भी ध्येय हो, व्यवहार का या निश्चय का, आत्मा का, सत्संग का, तो निष्ठा। सो ओब्लाइजिंग नेचर आया, मोरालिटी आई, सिंसियरिटी आई। निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। इंग्लिश में उसे हम बोल सकते हैं वेल फोकस्ड अबाउट आवर गोल्स एंड एम्स। फिर आगे चले तो हमारा दादा भगवान की जो बहुत बड़ी क्वालिटी थी और हम डेवलप कर सकते हैं, शुद्ध प्रेम की सजीवन मूर्ति बोलते थे दादा भगवान को। जीव मात्र के साथ उनकी जो फ्रेंडलीनेस, मैत्री और शुद्ध प्रेम था। अभी शुद्ध प्रेम का मतलब क्या है कि कोई अपेक्षा या शर्त के बिना हमारा प्रेम है। सो आप अपने घर के माता पिता, घर की व्यक्तियों, फिर मित्रों, सबके साथ ये शुद्ध प्रेम डेवलप कर सकते हैं धीरे 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 धीरे। फिर उससे आगे की जो बात है कि चारित्र बल, जिसे ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। दादा भगवान ने बताया कि जो दूसरों को डिसीव नहीं करता है, मीन्स क्या बोले हम हिंदी में, दूसरों के साथ जो छल कपट नहीं करता है, उसको कभी दुख नहीं आता है। दुख दूसरों को या खुद को डिसीव करने से आते हैं। सो ये ट्रूथफुलनेस, धोखा देना, हाँ धोखा देना। धोखा तो बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा, मैंने दादा ने बताया, दादा એ ગુજરાતીમાં એવું કહેલું કે દુઃખો જાતને છેતરવાથી આવે છે। This is a subtle thing. Anyway, છેતરવું मैंने हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, नक्की कुछ करते हैं, अंदर कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, कैरेक्टर की जो बात है, वो भी बड़ी चीज है। फिर आगे चल के हम चले तो दादाजी ने एक और चीज बताई थी, सुपर ह्यूमन, ह्यूमन, ऐसे 4 कैटेगरी बताई थी। कि ह्यूमन मैंने, कोई मुझे हेल्प करता है तो मैं हेल्प करता हूँ, अननेसेसरी किसी को दुख नहीं देता हूँ। सुपर ह्यूमन होता है, वो कोई हेल्प नहीं करता है तो भी उसको हेल्प करता है,
अपकार के ऊपर उपकार करना वो सुपर ह्यूमन है, और किसी के उपकार को भूल जाना और उसका बदला अपकार से देना वो जानवर पाशवी वृत्ति है। फिर दादाजी ने एक और चीज बताई थी, अणहक का कुछ मुझे नहीं चाहिए, मेरे हक का जो नहीं है, या लक्ष्मी या कोई चीज या कुछ भी हो, मेरे हक का ही मैं लूंगा, अणहक का नहीं। तो दादाजी ने बताया कि जहां तक अणहक की लक्ष्मी और विषय से दूर रहता है वहां तक मानव जन्म बरकरार रहेगा, यदि अणहक में पड़ा तो फिर चार पैर में जाने की तैयारी हो। सो ये जो कुछ अपनी क्वालिटीज हैं, तो इससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और सत्संग या आत्मा की बाबत में जो है, उसमें दो बड़ी क्वालिटी दादाजी ने बताई। एक परम विनय, विनय धर्म से हमारी शुरुआत होती है और परम विनय तक जाता है। विनय व्यवहार में माता पिता का विनय, वडिलों का विनय, गुरुजनों का विनय, वडिलों का विनय, फिर सब जीव मात्र का विनय। और निश्चय में विनय है ज्ञानी पुरुष का विनय, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उनका विनय, ज्ञान के साधनों का विनय। और फिर विनय का परमार्थ है कि दो व्यू पॉइंट से देखना रिलेटिव हो रही है। सो विनय धर्म और विनय बहुत बड़ी क्वालिटी है। दादाजी ने तप्तवाणी की शुरुआत ही यहाँ से की है कि परम विनय से ही मोक्ष है, और परम विनय से आप व्यवहार में भी बहुत सुखी होंगे। और विनय ज्ञानी को राजी करने का बहुत बड़ा साधन है। सो ये परम विनय है। दूसरा जो दादाजी ने बताया लघु भाव, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, उसका मतलब है कि व्यवहार में भी मुझे दूसरों से सीखने का आनंद है। किसी से सबके जो कोई भी सद्गुण है। अच्छा, एक और गुण है, दूसरों के गुणों के प्रति हम प्रशंसा भाव रखें, जेलसी ना रखें। किसी में कोई भी गुण दिखाई दे तो उसकी प्रशंसा करने से, उसको देख के आनंद पाने से वो गुण हमारे में आएगा। यदि हम जेलसी करेंगे तो वो गुण हमारे में शक्ति नहीं आएगी। तो दूसरों के गुणों की प्रशंसा और दूसरों के अवगुणों की उपेक्षा, उसके प्रति देखना नहीं है, या तो उसकी कोई हमें वो नहीं करनी है। सो ऐसे, हाँ बोलिए जी, कुछ किसी को बोलना है, पूछना है, बात करनी है तो जरूर करें। खुशी और अहमदाबाद, क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जो चीज है सब, फिर उसी का परिणाम आगे चल के आता है अभेदता में, मगर वो तो बहुत बड़ी चीज है, अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे हम जल्दी। मगर विनय धर्म से शुरुआत बहुत बड़ी है। विनय धर्म, ऑब्लाइजिंग नेचर, मोरालिटी, सिंसियरिटी, निष्ठा ध्येय के प्रति। निष्ठा को इंग्लिश में हम कमिटमेंट भी बोल सकते हैं, डेडिकेशन भी बोल सकते हैं। ये सब गुण मेरे ख्याल में आए, फिर तो आगे जैसे बात होगी तो करेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, खुशी ठक्कर, आपको क्वेश्चन? हाँ, जय सच्चिदानंद। शैलेश दादा, आपने बताया कि अणहक का नहीं लेना चाहिए, तो हमें चार पग में जीवन मिलता है, तो वो कोई भी चीज होती है तो भी इसमें ऐसा ही होता है? उसमें ये बात क्या है कि अणहक का जो भुगतने की वृत्तियां जिनकी है, वो फिर सभी जगह पे अणहक की वृत्तियां उसको बनी रहती है। दादा भगवान ने बताया कि ये तो लोग भय से लोग अभी थोड़े सीधे रहते हैं, मगर अंदर तो यदि कोई देखे नहीं तो कुछ भी भुगत लेने की उसको वृत्ति रहती है। तो ये जो वृत्तियां हैं अणहक का भुगतान करने की, वो चार पग में ले जाती हैं। महात्माओं को आमतौर पे वो वृत्तियां नहीं रहती, या तो प्रतिक्रमण करते हैं या तो दादाजी चेतावनी देते हैं, तो महात्मा लोग उससे बच सकते हैं। मगर ये काल ऐसा है कि हमें संभाल के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए?
एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल शास्त्र का है कि महावीर भगवान के समय में पुण्य श्रावक था, उनकी सामायिक बहुत उत्कृष्ट गिनी जाती थी, उतना शुद्ध चित्त रहता था उनका सामायिक में। एक दिन उनको सामायिक में चित्त लग नहीं रहा था, तो वो सोचने लगे कि क्या गलती हो गई है आज की, मेरा चित्त आज विक्षिप्त हो रहा है, गलती मिल नहीं रही थी। फिर उन्होंने उनकी धर्मपत्नी को पूछा कि कुछ आज गलत तो घर में नहीं आ गया। तो धर्मपत्नी ने पहले तो बोला कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं आया, पर फिर उनके ख्याल में आया कि रास्ते में से कुछ चीज उन्होंने ली, पड़ी थी, ली, तो वो किसी की तो हक की थी ना, उसको पूछा नहीं था क्या था। तो इतनी छोटी गलती में भी चित उनका डिगमिग डिगमिग हो रहा था। तो हमारी तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें अंदर जांच कर लेनी चाहिए कि भाई अंदर ऐसी तो वृत्ति नहीं है ना, किसी की चीज पड़ी है, अभी तो आप छोटे हैं, किसी के पैसे पड़े, पेन पड़ी, पेंसिल पड़ी, क्या अंदर ले लेने की वृत्ति होती है? या तो नहीं मेरे हक का नहीं है, जिसके हक का है उसको ढूंढ के दे दो, ऐसी वृत्ति रहती है? क्या रहता है वो हमें जांच करना है। हमें सबको, किसी को कुछ देना है, पैसा देना है, अरे भूल गया वो, या तो कम दे के चल गया तो चल गया, चलो भाई, तो ये चीज नहीं होती है। क्या होनी है? हमारे एक छोटा सा एग्जाम्पल ये ज्ञान मिला, तब बाद में हमें प्रतिक्रमण में ये सब दिखाई दिया कि हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारे घर से बस में जाना पड़ता था, और उस जमाने में 20 पैसा 25 पैसा ऐसा टिकट रहता था। जब पास खत्म हो गया, पास ऐसे तो पास निकलवाते थे, मगर कई दिन ऐसे होते थे पास खत्म हो गया, नहीं जल्दी निकला तो टिकट लेनी पड़ती थी। कई बार बस में भीड़ बहुत होती थी तो कंडक्टर सबको देख नहीं पाए, तो हम मन में वो रहते थे कि आज यदि टिकट नहीं लेनी पड़े तो 25 पैसा बचत हो जाएगी। मगर परिणाम स्वरूप क्या होता था, भाई भाई भाई, कब कंडक्टर देख लेगा, कब कंडक्टर टिकट मांगेगा, कब कंडक्टर मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो ये जो अनहक से 25 पैसा बचाया, उसका परिणाम क्या आया, भय। इसलिए दादाजी ने बोला था डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। तो ये सब वैज्ञानिक ढंग से क्वालिटी ऐसी एब्रप्ट या एडवाइजरी चीज नहीं, उसके साथ सब विज्ञान जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सब व्यवहार और आत्मा का पूरा विज्ञान, ये सब चीज विज्ञान से है, विज्ञान जुड़ा है उसके साथ। क्या है? पूरा विज्ञान जुड़ा है। अच्छा, परीक्षा में मान लो एग्जामिनर नहीं है हॉल में, तो कितने लोग इसमें से चोरी करेंगे? बोलो मेरे को, बाजू में के पेपर में से कितने लोग लिखेंगे हमारे में से? एग्जामिनर चला गया कि चलो भाई मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ, कुछ काम है, आप लोग एग्जाम का पेपर लिखते रहिए। हमारे में से कितने लोग हक में रहेंगे, कितने अड़हक में चले जाएंगे? सच सच बताओ। सब लिखेंगे, आज जो बाजू में से नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। एग्जामिनर है नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, लिख लो ना। मैं नहीं हाँ। करूंगा, हाँ, मैं नहीं करूंगा। नहीं लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी उसका नाम है, या तो कि कोई देखने वाला नहीं है तो भी मैं अंदर के भगवान तो देख रहे हैं, उसकी साक्षी में मैं गलत नहीं करूंगा। क्या करूंगा? गलत नहीं करूंगा। हाँ। एक स्टोरी थी, एक गुरु थे, उन्होंने उनके शिष्य को बोला, 2-3 शिष्य जो भी थे, कि ये काम करना है मगर ऐसी जगह पे करना है जहां कोई देखे नहीं। एक शिष्य बहुत पहाड़ पर जंगल में ऐसा वैसा करके वो करके आया, दूसरा कुछ करके आया, तीसरा शिष्य ऐसे ही काम किए बिना वापिस आया। तो गुरु ने सबको पूछा, फिर इसको पूछा कि आपने क्यों काम नहीं किया? गुरुजी मुझे ऐसी जगह ही नहीं दिखाई दी कि कोई मुझे देख ना रहा हो। तो बोले ये कैसे? तो बोले अंदर वाला तो निरंतर देख रहा है, उससे छिपा के, तो भगवान तो निरंतर देख रहे, उसको इससे छिपा के मैं कैसे करूंगा? गुरुजी बोले ये मेरी गद्दी के लायक है, चलो सच्चा वारसी है। समझ में आई बात? हाँ। ठीक है।
हाँ ओके, तो अभी अभी इसकी बात हुई एक एक हमको भी एक क्वेश्चन याद आता है शैलेश दादा, इन लोग को जी पूछने का। अभी पेपर में आया, कल पेपर में आया कि सच एंड सच स्टोर वाला फ्री आइसक्रीम देने वाले हैं। मुफ्त फ्री ऑफ आइसक्रीम स्टोर कॉस्ट। में, ओके, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप खुशी अहमदाबाद, आप पापा को क्या बोलेगा, मम्मी को क्या बोलेगा? चलो जाइए। हाँ, मोनिका, आइसक्रीम में तो खाना चलता है। मोनिका, ओ आइसक्रीम सॉरी इसलिए कि मुफ्त सॉरी है सॉरी इसके लिए। सॉरी सॉरी, मैंने आइसक्रीम नहीं बोला, पिज्जा बोला, पिज्जा। लेट्स चेंज टू पिज्जा। ओके मोनिका, जल्दी 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 बोलो। हाँ, पापा से मुझे लाके दो। आई डोंट सुना ही नहीं। नो, यू कैन नॉट हियर यू मोनिका। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। हाँ, हाँ, पापा से ये कहूंगी कि मुझे ला कर दो। क्या लेट पापा करो? को लाके दो, लाके दो। मेहनत पापा करेंगे, और मैं खाऊंगी। पापा को नौकर बनाएगा। ओके पापा खुशी, शॉप पे नहीं है। वो मोनिका पापा को नौकर है, मोनिका। नहीं, पापा कुत्ते भी नहीं है कुछ। ओके ये खुशी, पूछ रहे हैं, आपकी समझ में नहीं, आप मुफ्त की बात कर रहे हैं। जो मुफ्त मिलता है वो ये लेने के लिए कितने लोग जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो। चलो हाथ ऊंचा करो, खुशी हाथ ऊंचा करो। जो मुफ्त के लिए जाते हैं वो हाथ ऊंचा करो। ओके ये हिताक्षीबा ना बोलती है, क्यों हिताक्षीबा? मैं पहले मम्मी को पूछूंगी कि लेना है कि नहीं लेना। मम्मी हाँ नहीं बोलेगी वो हमने तो नहीं लूंगी। पूछा, हमने ऐसा नहीं पूछा कि मम्मी को पूछने का है। आप पापा मम्मी को क्या बोलने का कि चलो हमको जाने का है, वो बोलेगा कि नहीं, वही पूछता है। व्हाट इज योर डिजायर, मम्मी को डिजायर की बात करते हैं मुफ्त आपको। मुफ्त लेना कि नहीं लेना, वो प्रश्न है इधर। क्या लेना है। लेना है? ओके अभी अभी तो लेना है, शरद हिताक्षी शरद बाबू दादा, बोलती लेना है। नहीं लेना। ये शरद दादा, ये चेरी बताओ उन लोग को मुफ्त में क्या होता है ये लेने के। दादाजी ने ऐसा बोला कि इस जगत में मुफ्त में ने फ्री जैसी कॉस्टलीस्ट चीज कोई नहीं है। इससे अधिक कॉस्टली कुछ है ही नहीं जो मुफ्त मिलता है उससे। क्यों? तो कि मुफ्त के लिए एक तो आपको कितनी लंबी लाइन में खड़े रहोगे, सब लोग वहां टूट पड़े होंगे, आपका समय और वो तो बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी, उसकी आपको कीमत नहीं है। और दूसरा सब उससे भी बड़ा चीज कि मुफ्त के लिए हमारा पुण्य तो इस्तेमाल होता है, वो भी अलग चीज है, मगर उसके जो मन को जो आदत पड़ती है मुफ्त की, वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। ये सब आज देखो आप, ये सब मार्केटिंग वाले समझ गए। पहले मुफ्त देते हैं कि भाई ये मुफ्त के लिए 1 महीना फ्री, फिर आपको इससे ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर वो कुछ भी मांगेगा तो आपसे छूटता नहीं है, वो ले आपको चाहिए ही चाहिए। सो मुफ्त तो बहुत बड़ा रोग है, दादाजी बोले। फ्री इज द कॉस्टलीस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ऐसा दादाजी ने बताया था। और उसमें सबसे ज्यादा दादाजी ने ये बोला कि मेरा मन जो बिगड़ जाता है, मुझे जो आदत हो जाती है, गलत आदत हो जाती है, वो फिर मुझे मारेगी या तो फिर नीचे ले जाएगी, इस तरीके से। और मुफ्त देने वाले बहुत होशियार होते हैं कि भाई एक बार मुफ्त दे के उनको आदत बना दो, फिर तो वो लोग आने वाले ही है अपने पास। फिर तो जो पैसा चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, देंगे। इसलिए मुफ्त का लालच में मत पड़ो। मुफ्त की लालच बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं लालच सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी जैसे हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, उसके सामने एडवर्स चीजें भी होती है जो जिससे हमें बचना है। इन चीजों से बचना भी एक क्वालिटी है, उसमें लालच बली बुला, ऐसा तो हिंदी में भी कहावत है। तो उसमें मत फंसना। सब मालूम पड़ गया। ओके, तो ये वीकेंड में रिपोर्ट तो लिखने का है, और ऑल्सो जोट डाउन रिसर्च करके कि नॉट टू गुड क्वालिटीज क्या होता है। लाइक एक तो बता दे, जयेश दादा ने एक तो बता दिया आपको,
ग्रीड के लोभ और लालच ओके गुजराती ने इट्स द सेम वर्ड फॉर लालच इन हाँ हिंदी गुजराती में ही लालच गुजराती वर्ड है, लालच गुजराती शब्द है। मोनिका इंग्लिश में क्या या मीन सॉरी हिंदी में क्या होता है लालच लालची बोलते हैं, लालची। हाँ लालच लालची लालची Okay. लोग ऐसा बोलते लालची हाँ, okay so please keep up your report Saturday Sunday के लिए और रिपोर्ट में गुड क्वालिटीज एंड एट द बॉटम लिखो और नॉट गुड क्वालिटीज बैड में लिखो then you can every day you can pick and choose उसमें से कि आप क्या करते हैं नहीं करते ओके ओके तो see you Monday जय सच्चिदानंद चलिए। and खुशी चिनाई हाँ, लेजीनेस वो भी निकाल दो 3 साल हो गया इधर there's no word like laziness दादा भगवान सुबह 4-5 बजे उठ के रात को 11 बजे एवर फ्रेश था ओके सो नो एक्सक्यूजेस और हम जिया और किधर गया इधर गई थी उधर गई थी नो एक्सक्यूजेस रिपोर्ट लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगता है किधर भी जाते हैं उधर भी रिपोर्ट लिख के भेज सकते हैं ओके जय सच्चिदानंद